And in return, I did not do any caregiving at any time of my life, you know. Even as a child, I see the child who fully depends on. रिकॉर्ड करती हूँ. Hello everyone. Welcome to Sunset Years with Chitra Jha, a space where we talk about the years that come after the rush, the years of reflection, relationships, and redefining who we are. Today, we are talking about something so many of us are living but rarely speak about: caregiving. In our 50s and 60s, the roles quietly flip. The parents we once cared by now need us. Our spouse may need support. And sometimes we are also caring for grandchildren. We give our time, our energy, our heart. But in the middle of all that giving, we start asking, who is caring for me? Why does this feel so familiar? And what am I leaving behind? This is where caregiving meets something deeper: patterns. The patterns we learn in childhood, the patterns we repeat, and the chance to finally break them. Chitraji, welcome to Sunset Years. Let's begin here. Yes. Thank you, Sukhbir. Where you first start caregiving for someone you once depended on. What's the Yeah. one emotional truth most people aren't prepared for? Yeah. So as I'm listening to you, Sukhbir, and as I'm also simultaneously reflecting on my life, I feel that caregiving is a constant. It's not like that I depended on someone and in return I did not do any caregiving at any time of my life, you know. Even as a child, I see the child who fully depends on the parents, but at that tender age, the child wants to please the parent. Yes. You know, इसीलिए कई चीजें बच्चा छुपा लेता है कि मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा. Yeah. तो वो भी एक काइंड ऑफ केयर है. Yes. I care for you, so I do not want to disappoint you by what I have done or what I'm thinking or what I'm feeling. So I will, hide that. Yeah. I will not share it with you, lest you become more unhappy or angry or sad. I think that is a beautiful caregiving because caring is something inherent to humans. I love you, I care for you. Yeah. है ना? But what you are talking is now where the other person becomes dependent on you. So caregiving was always there, but dependence वो नहीं था. बच्चे के ऊपर parents are not dependent. Yeah. It is like a time comes when your parents, because they are so old, that now cannot take full care of themselves. So gradually they become dependent on you. तो अगर मैं एक अपना भी देखूं तो एक स्टेज आती है जब आप 20s में मैं तो अपना आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली. आई वाज लाइक फुल्ली इंडिपेंडेंट. केयर मैं तब सबकी करती थी बट कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं था. फिर मेरी शादी हो गई. अब मेरा हस्बैंड भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, पर मेरा घर मेरे ऊपर डिपेंडेंट था. Yes. मेरा किचन मेरे ऊपर डिपेंडेंट था. Hmm. फिर मेरे बच्चे आए, अब मेरे बच्चे मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं. Yeah. तो मैं केयर गिवर भी हमेशा रही जहां अब कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गया है. बट द ब्यूटिफुल थिंग इज कि वो लोग ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट होते गए. Hmm. बट पेरेंट्स के केस में क्या होता है,
वो ग्रेजुअली और डिपेंडेंट हो जाते हैं, Yes. है ना। अब Yeah. हम भी, मैं भी ग्रेजुअली अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, लाइक मैं अपने हस्बैंड के ऊपर ग्रेजुअली डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि मैंने, आई वॉज नॉट अर्निंग, Yeah. इवन दो मैं काफी कुछ चीजें कर रही हूँ, घर को संभाल रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट ऑन सर्टेन थिंग्स आई वॉज डिपेंडेंट ऑन हिम। फिर क्या होता है कि यू आर डिपेंडेंट, कि भी आप मेरी टिकट बुकिंग कर दो, अच्छा आप यहाँ हॉलीडे में ये कमरा बुक करोगे, ये मतलब कुछ कुछ काम आप करोगे, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। एंड मेरा हस्बैंड तो ही वॉज वेरी गुड विद इंटीरियर्स, तो आई वॉज डिपेंडेंट ऑन हिम कि घर को, और हम तो आर्मी में कितना घर मूव करते थे, तो घर को वही करेगा, इनिशियल जो उसकी इंटीरियर्स है वही करेगा, तो आई वॉज डिपेंडेंट ऑन हिम, राइट। बट इन मेनी एरियाज आई वॉज इंडिपेंडेंट। Yes. तो क्या है कि जो आपकी एक्सपर्टीज है या जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें कोई और डिपेंडेंट हो जाए, यू डोंट माइंड, Yeah. कि मेरे पास तो पैसे है ही है, मैं कमा ही रहा हूँ, अभी तू भी डिपेंडेंट हो गई, कोई बात नहीं, ये काम तो मुझे आता ही है, अभी तुम नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। बट यहाँ जब हम पेरेंट्स की बात कह रहे हैं, एक तो क्या है ना कि हमने उनको कभी डिपेंडेंट देखा नहीं है, Yes. Yeah. हमने उनको इंडिपेंडेंट देखा है, मतलब दे वर द अथॉरिटी, दे वर द लॉ इन आवर लाइफ। उन्होंने जो कहा, मतलब वही सत्य हो गया हमारे घर में। तो वो हमारे अंदर भी वो कहीं तरह ना, पूरी तरह से हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इन द डिपेंडेंट मोड। मैं नहीं कर पाती थी अपनी माँ को, क्योंकि भाई आप ऐसे इतने इतने निरीह कैसे हो गए, Yes. है ना। Yeah. मतलब यू आर लाइक अ पावर हाउस, Yeah. Yes. हाउ आर यू बिहेविंग, लाइक ऐसे इनसिक्योर जैसी कैसी बातें कर रहे हो, हाँ. है ना। तो वो Yes. क्या है कि पहला ये एक्सेप्टेंस, कि जो भी कोई बीमार होगा या बूढ़ा, बूढ़े बूढ़े की बात नहीं होती है यहाँ पे, यहाँ बीमारी की बात होती है। यू कैन बी ओल्ड एंड यू कैन स्टिल बी इंडिपेंडेंट, एंड यू कैन बी यंग एंड यू कैन स्टिल बी डिपेंडेंट So true. एट इन डिफरेंट स्पेसेस, राइट। Yes. Yes. तो यहाँ पे क्या है ना कि सर्टेन पीपल वी आर यूज टू, कि हाँ ये वाइफ है मेरे पर, ये इस एरिया में डिपेंडेंट है, या हस्बैंड है इस एरिया में मेरे पे डिपेंडेंट है, इस एरिया में मेरे बच्चे मेरे पे डिपेंडेंट हैं। बट पेरेंट्स का, कि हाँ लाइक हमारे बच्चे कहें कि चलो टेक्नोलॉजी में मेरी माँ मेरे पे डिपेंडेंट है, Hmm. बट एवरीथिंग अगर कि भाई मेरे ऊपर ही बैठ गई आके, है ना, तो Yeah. वो एक बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। दे And आर ऑल्सो नॉट यूज टू बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन अस। yeah, मतलब ये टिडली पिडली कल घूम रहे थे, अब इनकी बात सुननी पड़ेगी मेरे को। it is new for them also. इट्स न्यू फॉर देम ऑल्सो। अब Yeah. ये मुझे समझाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, अब ये बना के खिलाएगी, मतलब जिसको कुछ आता नहीं था कल तक, So है ना। true. हाँ. तो ये दोनों तरफ से यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कमी है, Hmm. एंड दैट इज अ वन थिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, कि Yeah. ये आप नहीं कर पाओगे, ये मैं कर दूंगी, अब जितना आप कर सकते हो आप करो, पर Hmm. इट डजंट मीन आई डोंट केयर फॉर यू, इट Yeah. मीन्स दैट आई वांट यू टू स्टे एक्टिव। Yes. जितनी इंडिपेंडेंस आप कर सकते हो आप करो, पूरी Yeah. तरह से गिव अप मत करो, और वहां पे उनको भी लगे कि हाँ अब आई आई शुड लेट गो, Hmm. अब जो नहीं हो रहा है मेरे से, अपनी लिमिटेशंस को अब मैं एक्सेप्ट कर लूं। Yeah. तो ये एक बहुत ही, मतलब ऐसे तो सिंपल है, बट क्योंकि हमारी अपनी जो ईगो बीच में आ जाती है, हमारा अहंकार आ जाता है, हमारी
कंडीशनिंग आ जाती है, सो ऑल दैट मेक्स इट लिटिल डिफिकल्ट. Yeah. So, very important part which I understood is that open communication, at this Yes. stage, having a Yeah. heart-to-heart conversation, ki it's not as if ki I don't want to do it. It is something Yeah. like let's decide where, what can you do and Yeah. where you need my help and where I only have to do it. So slowly, slowly, some areas Right. need to be decided, and that is how this particular this entire caregiving, and that is where I think even I am also struggling at my end, that I also have two senior citizens at my place, and so caregiving at times I feel is exhausting and often invisible. And Yeah. how do we care for someone without losing ourselves in the process? Because वो Yeah. होता ये कि समझ में नहीं आता where is the line between duty and self sacrifice, which you rightly pointed that out, कि एक open conversation, और वो बहुत बार ये open conversation भी नहीं हो पाता है क्योंकि there are so many, as you said, ego is also there, then conditioning is also there, so then it becomes really very difficult. और ये वो फिर वहां Yeah. पर वो चीजें आने लग जाती है कि where is the line between duty and self-sacrifice? Please throw some light on Yeah. this. Yeah. So let's come back to caregiving of our children, because then things are put in perspective. Yeah. तो एक तो क्या होता है, हम यंग होते हैं Yes. उस टाइम में. फिर क्या होता है कि बच्चे पैदा करना हमारी एक चॉइस होती है Yes. टू सम एक्सटेंट. Yeah. एंड एंड वी नो कि ये टेम्पररी है, ये फेज, Yeah. ये बड़े हो जाएंगे, है ना. Mm. मेरे बच्चे तो एक के बाद एक आए, तो देयर वाज लाइक अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 इयर्स जब मैं रात को पूरी तरह सोई नहीं थी, Hmm. बिकॉज यू हैव टू कीप गेटिंग अप, है Yes. ना. पर वो एक चॉइस थी, एंड ऑल्सो द थिंग कि दिस टू शैल पास. Yeah. ये तो थोड़े दिन की. एंड फिर क्या है, वो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे हम बाउंड्रीज उसकी, लिमिटेशंस उसकी कम होती जाती हैं. अब Hmm. आप उसकी बाउंड्री बढ़ती है, आप उसको और इंडिपेंडेंस देते हो और उसमें जाते हो, सो ग्रेजुअली आप फ्री हो जाते हो, है ना. Yes. अब यहाँ पे क्या है विद पेरेंट्स, एक तो लॉन्जेविटी इतनी बढ़ गई है, Yeah. हम खुद भी 50s में आ जाते हैं, 60s में आ जाते हैं, कई बार 70s में आ जाते हैं, पेरेंट्स आर स्टिल अलाइव, Yes. है ना. एंड दे आर नाउ इन देयर 80s एंड इन देयर 90s. तो अब क्या है कि उनके जो एक फिक्सेटेड आइडियाज हो गए हैं, एक वे ऑफ लिविंग लाइफ हो गया है कि दिस इज व्हाट आई वांट. अभी चाइल्ड का तो कुछ फिक्सेटेड नहीं होता है, आप उसको, वो तो क्ले है, आप उसको ढाल सकते हो, Mold कर सकते हैं. Yes. अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, है Yes. ना. पर यहाँ पे क्या है कि वो ऑलरेडी मोल्डेड है. Hmm. अब आप उनको अगर, क्योंकि आपका भी एक लाइफ स्टाइल चल रहा है, आपके अपने चैलेंजेस चल रहे हैं, आपके अपने बच्चे उसी एजेस में, आप खुद अपने करियर में कर रहे हैं, आपकी हो सकता है अभी अपनी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, स्पाउस से कुछ चल रही हो, कुछ वर्क प्लेस में चल रही हो. सो दीज आर द टाइम्स व्हेन यू आर ऑल्सो, एंड ऑल्सो लाइक यू सेड कि वो सेल्फ के ऊपर फोकस करने का ज्यादा मन करता है इन दीज एजेस. Hmm. 50s 60s में वी आर लाइक अभी द वर्ल्ड इज ऑल्सो ओपनड अप, वी ऑल वांट टू शेयर आवर टैलेंट्स, आवर गिफ्ट्स, वी वांट टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स. तो ये जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ये एक तरह का बर्डन लगता है कि Yes. यार मैं तो फ्री नहीं हुई. पहले वो घर गृहस्थी में लगी रही बच्चों के, उसमें बच्चे, अभी बड़ी मुश्किल से मेरा एम्प्टी नेस्ट हुआ था, लो जी अभी तो मेरे नेस्ट में अभी तो ओल्डर पीपल आके बैठ गई है, तो आई डिडंट आस्क फॉर इट, Hmm. आई डिडंट बार्गेन फॉर इट, Hmm. है ना. तो वो क्या है कि वो लगता है कि बाहर से एक थोपी हुई जिम्मेदारी. Hmm. फिर क्या है कि अगर आप अकेले हो तो फिर भी है कि अच्छा मैंने ही टेक केयर करना है. Hmm. अगर सिबलिंग्स होते हैं
तो एक और तरह की वो आ जाती है कि मैं क्यों करूं, मैं अकेली क्यों करूं, हम्म मेरा सिबलिंग क्यों नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी में तो हिस्सा लेने पूरा आ जाएगा। हम्म तो वो क्या है ना कि एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मेनी थिंग्स आर प्लेइंग अप, इट इज नॉट जस्ट केयर गिविंग। या केयर गिविंग में तो आज की डेट में कौन कर रहा है, खुद सब केयर गिवर रख रहे हैं, प्रोफेशनल्स, अपने आप वेरी तो कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ सुपरवाइज भी करना भी मुश्किल हो जाता है, हम्म और वो केयर गिवर को भी सुपरवाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो भी कोई ऐसे ट्रेन्ड टाइप या कंपैशनेट टाइप तो नहीं होते हैं ना। हम्म उनको तो एक छोटा सा बस एक ट्रेनिंग दे देते हैं और एक नौकरी है ये तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। या सो दे ऑल्सो डोंट डू देयर वर्क एज वेल। देन जो पेरेंट्स भी हैं दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड कि भी केयर गिवर रख दिया है। वो हम्म कहते हैं तुम भी आके बैठो, हम्म तुम इसको देखो, आप उनके पास जाओगे वो 50 आपको केयर गिवर की शिकायतें करने लग जाएंगे। हम्म सो यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यस एंड फ्रस्ट्रेशन में एग्जॉशन है, फिर चाहे कुछ कर नहीं रहे उनके लिए, हम्म बट वो प्रेजेंस ही जो उनकी है ना, जो हम्म डिससेटिस्फाइड सी एक प्रेजेंस है, हम्म या एक दिमाग में है कि भी अब इनको, अब इनका आज ये शेड्यूल देखना है, ये फिजियोथेरेपी देखना है, ये खाने में देखना है, ये इसका ये करना है इसको, बिकॉज केयर गिवर तो वो सब नहीं करेगा ना, लॉजिस्टिक्स बिल्कुल तो ओनली यू बिल्कुल आर सेइंग लॉजिस्टिक्स। तो वो जो काम बढ़ जाता है, हम्म दैट इज व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग, एग्जॉस्टिंग, एंड देन खुद भी कहीं पे गिल्ट भी आते रहता है, एंड हम्म अगले बंदे भी आपको थोड़ा सा, थोड़ी सी भी कंप्लेन करेंगे आप पर्सनली लेने लग जाते हो। हाँ यस तो ये बड़ा एक हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब मेरे लिए भी हो गया था, तो आई अंडरस्टैंड दैट। या so I think this understanding itself, that this is how it is. And उसके बाद भी you have to, this is like, this is how it is. There has to be some management, and definitely professionally अगर आप क्या मतलब support रख लेते हो, तो it helps. It definitely helps. I have seen in my case also कि जब आप आउटसोर्सिंग थोड़ा बहुत करते हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत हेल्प होने लग जाता है और चीजें थोड़ी सी मैनेज होने लग जाती हैं। यस, आई टोटली एग्री देयर। बट स्टिल मेनी केयर गिवर्स फील गिल्ट। जैसे मुझे भी बहुत मतलब बहुत टाइम तक गिल्टनेस सता रहा है, मतलब लाइक गिल्ट है, रिजेंटमेंट है, एंड लव ऑल एट वंस, एवरीथिंग इज देयर। बीच में ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसे उड़ के मैं बस पहुंच जाऊं, और मतलब and then sometimes या feel कि okay, so you're always in dilemma कि like क्या सही है और क्या गलत है ना। And how can someone hold these conflicting emotions without really feeling like a bad person ना, मतलब जैसे बहुत ऐसा फीलिंग आने लग जाता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, ये मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, ये वाला। प्लीज थ्रो सम लाइट या देयर। सो मैंने जो सीखा है अपनी लाइफ से, एंड कि सबसे पहले हमें व्हाट इज ऑन माय टेबल, मतलब मेरे पास कितना टाइम है, मेरे कितने रिसोर्सेज हैं, मेरी क्या लिमिटेशन है, और मेरी अदरवाइज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यस टुवर्ड्स माय ओन सेल्फ, माय हेल्थ, माय अदर एरियाज ऑफ माय लाइफ, माय स्पाउस, माय चिल्ड्रन, माय हाउस, और एनी अदर थिंग। एंड देन जब आप एक बार ये अपनी क्लैरिटी ले लेते हो हम्म कि ये तो मेरे, क्योंकि माय टाइम इज फाइनाइट, यस माय रिसोर्सेज आर आल्सो फाइनाइट या in a way, हम्म and my responsibilities are also seeking my attention. हम्म My own health is seeking my attention. My own job is seeking my attention. हम्म So, how much I can give, to this aspect without feeling resentful, यस without neglecting everything else. या थोड़ा बहुत तो नेग्लेक्ट होता है, जब हमारे बच्चे भी होते हैं कई चीजें हमारी नेग्लेक्ट होती हैं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हम्म यहाँ पे भी वी हैव टू गिव दैट लीवे कि दे विल बी सम डेज when somebody is actually seriously unwell or
सो दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज डेज तो मे बी सब कुछ निग्लेक्ट करके आपको वहीं पे फोकस करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल हाँ. आई एम टॉकिंग अबाउट डे टू डे. यस. जब चीजें थोड़ी ठीक चल रही हैं, हम्म. तो ये गिल्ट तब आता है जब हमें कि भी आई आई हैव टू बी परफेक्ट. मैं इसको भी अच्छे से संभालूं, इसको भी अच्छे से संभालूं, इसको भी. ना मैं से कि भैया मेरी एक जान है और मेरे से इतना ही होता है. हाँ. एंड उसको भी क्लियरली कन्वे कर देना कि भी मैं इतना ही कर सकती हूँ. यस. क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी वही किया है. ऐसे नहीं कि वो रात दिन हमारे पास ही बैठे हुए थे, या हम्म. हम भी अपने बच्चों के पास रात दिन तो नहीं बैठे थे ना. मुझे हम्म. खाना भी बनाना है, मैं अब बच्चों को प्रैम में डाल के किचन में ले जाती थी वो कि मैं खाना बना रही हूँ तो अब तो प्रैम में यहीं बैठ. हम्म. है ना. कपड़े भी धोने हैं तो प्रैम बाथरूम में. तो अब पेरेंट को तो नहीं ले जा सकते हो किचन में, बाथरूम में, है ना. हम्म. दो आई वुड रियली लाइक कि अगर चलते फिरते पेरेंट्स से भी आप आओ यहाँ पे कुर्सी में बैठे रहो, हम्म. मैं यहाँ पे काम करती रहूंगी, आपसे बात करूंगी. मेरे पास ऐसे बैठ के आपसे बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है. यस. हम्म. मैं तो आज की डेट में भी देखती हूँ कि माई लाइफ इज सो बिजी. अगर मेरी सिस्टर्स वगैरह का फोन आता है या मुझे ही कभी लगता है कि उनसे मैं बात करूं, मैं साथ साथ कुछ काम करती रहती हूँ. बर्तन धोती रहूंगी, बात करूंगी, कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बात कर रही हूँ. तो उसमें फिर रिजेंटमेंट नहीं होती है. हाँ. नहीं तो मेरा अगर काम पड़ा हुआ है, हम्म. वो बोल दो लो इसका फोन आ गया, अभी 1 घंटा यार ये मुझे पकाएगी. अब हम्म. मेरा तो इतना काम ही रह जाएगा. बट मुझे ऐसे नहीं है, मुझे है कि लेट्स हैव फन. मैं काम भी कर लूंगी, बातें भी कर लूंगी. काम भी इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया. यस. हाँ. तो दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन, इफ यू हैव, बट दैट विल हैव हैपन ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्वर्सेशन. हम्म. कि भी ये मेरा काम है, मुझे आपके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, बट लेट्स सी कि हाउ वी कैन डू इट टुगेदर. व्हील चेयर में भी ले जाके बिठा सकते हैं अपने साथ. यस. तो मुझे लगता है वो आपने बहुत ब्यूटीफुल चीज कही कि एक्चुअली रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है. और जो आपने जो पहले भी हाँ. आप बार बार बोलते रहे हैं ये बात कि रियलिटी देखो, मतलब ऐसे परफेक्शनिस्ट बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. पहले तो ये एक्सेप्ट करना है कि भाई परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज द रियलिटी और उसके अराउंड बिल्ड करो कि यस. make whatever simplification is possible, let's simplify that. या. And so beautiful the या. way you said it कि भाई रिजेंटमेंट आने का चॉइस, मतलब जब आप साथ में सारे काम हो रहे हैं और साथ में सब या. चीजें हो रही हैं तो फिर सब कुछ मैनेज लगेगा, तो आपको बिल्कुल भी वो सब फीलिंग्स नहीं आएंगे. एंड दैट इज वेयर आई राइट. थिंक वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि जहाँ पे कि आउटसोर्सिंग थोड़ा बहुत भी नहीं कर रखा है, अगर प्रोफेशनल केयर गिवर नहीं हम्म. रखा है, हम्म. तो हम्म. देर इज अ बर्नआउट पॉसिबिलिटी. तो बहुत या. ज्यादा बर्नआउट हो या. जाता है. एंड दे डोंट रियलाइज, द केयर गिवर डजंट इवन रियलाइज कि उसको खुद को कितनी सपोर्ट की जरूरत है. सो या. जो आप कह रहे हैं ना बाउंड्री बनाना, लाइक बाउंड्री बनाना इज वेरी या. इंपॉर्टेंट कि आई हैव टू बी, आई या. हैव टू फर्स्ट be very clear that this is bare this is what I can do. तो इसी तरह से can you suggest या. some 3 small daily practices that can actually help a caregiver stay a little bit grounded कि हाँ भाई यही, and so that they don't या. burn out actually. या. Yeah. तो आई विल शेयर कि मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो रिमेन वेरी बिजी एंड वो तो अपनी मर्जी से बिजी रहती हूँ, वो एक अलग बात है, बट फिर भी आई फील दिस विल हेल्प इन एवरी एरिया. Yes. एक तो जब पहले आप सुबह उठते हो तो हड़बड़ी में अभी मतलब ओहो अभी उठते ही कुछ कहानियां मत शुरू कर दो. Hmm. पहले जस्ट टेक स्टॉक ऑफ योर डे Yeah. कि आज मेरे क्या क्या अर्जेंट काम है. एक प्रायोरिटी टाइप एक लिस्ट बना लो. हाँ. है ना. सिट सिट विद द डे Hmm. कि आज मेरा क्या क्या मुझे करना है. Hmm. एंड ये मेरी प्रायोरिटी है. ये मैं जैसे आज मेरा अभी 10:30 हमारा पॉडकास्ट था, तो नॉर्मली मैं ओशन पे जाती हूँ सुबह. तो आज मैंने कि मैं सिर्फ वहां तक जाऊंगी जहाँ वो मेरा कोकोनट वेंडर है. कोकोनट पीऊंगी, बेटे के लिए लेके आऊंगी. तो
ये क्या है कि मैंने ये अपना कॉन्शियसली अब मैंने इसको प्लान किया यस। कि वहां तक जाने का आज मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म। तो ऐसे ही हम कॉन्शियसली एक तो प्लान करें कि भाई मेरे मेरे आज क्या है, व्हाट इज डिमांडिंग माय अटेंशन टुडे, फिर यस। उसकी प्रायोरिटी क्या है, हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक जब भी बीच बीच में दिन में ऐसा कुछ लगे कि ओ हो आई एम लाइक ओवरवेल्म्ड, सो जस्ट सिट डाउन एंड टेक 3 डीप ब्रेथ्स। यस। या। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भी मैंने देखा है कि अगर मैं 5 मिनट भी आंख बंद करके लेट जाऊं ना, कभी बीच में ऐसे लगता है कि अब थक गए, हम्म। इवन 5 मिनट्स अलार्म लगा के, नहीं तो कई बार फिर नींद लग जाती है, हाँ। जस्ट आप यू हैव यू विल फील गुड। दिन में 2-3 बारी भी कर सकते हो ऐसा। और अगर ज्यादा टाइम है तो 10 मिनट, 15 मिनट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि टेक स्मॉल ब्रेक्स। हम्म। फिर क्या होता है, कई लोग कहते हैं ना कि भी मैं शांति से बैठ के 1 कप चाय पी लूं तो मैं ठीक हो जाती हूँ। हाँ। हाँ। तो शांति से बैठ के चाहे 1 गिलास पानी पी लो, यस। शांति से, कि ये मैं जस्ट घूंट घूंट करके अपने लिए ये पीऊंगी, या हर्बल टी या टी जो भी है एक। सो आई फील कि ये थ्रू द डे आप एक तो आपने दिन में पूरा स्टॉक ले लिया सुबह सुबह, हाँ। फिर उसके बाद थ्रू द डे ऑल्सो यस। टेक स्टॉक ऑफ योर एनर्जी यस। एंड रिप्लेनिश इट, यस। है ना। अदरवाइज वो बिल्डअप होते रहता है हाँ। और फिर रिजेंटमेंट आती है। हाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट आई थिंक ये जो आपने कहा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर लाइक नो, पहले तो टेकिंग स्टॉक, फिर उसके बाद पॉज, बार बार पॉज लेके चेक, तो भाई कहाँ या हो तुम? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, व्हाट डू आई नीड राइट नाउ, बिफोर कि फिर से मैं निकल पड़ूं। हाँ? हाँ। फिर से कोई एक आग बुझाने का कार्यक्रम चालू करो। मोर्चे पे। बिल्कुल बिल्कुल। सो या आई थिंक दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि भाई जो काम है वो तो है ही, और वो अगर हमें या पता है कि ये एजेंडा में है ही, बट यस, थोड़ा सा अपनी भी 5 मिनट्स, एक चाय या फिर whatever is comfort for you, and sit down या or maybe just lie down as you pointed out, so या that is like या where that या really helps. So I think this will go या definitely a long time. Means a very important for the caregivers. So this brings या me to another question where I feel that there is a relation, but I'm not sure whether it is or not. So I want to ask you, when we are caregiving, we often fall into some old patterns, like from our childhood. Mm, either repeating how we were cared for or doing the exact opposite. And so, how do we identify these patterns? And should we really do it, or is there something which we need to really look into it? Please throw some light there. या तो क्या होता है कि जब हम पेरेंट बनते हैं तो बच्चा एक क्लीन स्लेट टाइप हो, उसके साथ भी होती है शेड हिस्ट्री, पिछले जन्मों की होती होगी बट वो हमें याद नहीं रहती है ना। वो एकदम एक बच्चा आया है उसके, यू आर द केयर गिवर, राइट, यू आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप फ्रॉम स्क्रैच। Yeah. अब यहाँ क्या है, विद पेरेंट्स तो पूरी हिस्ट्री चल रही है साथ में, हमारी अपनी इतनी रिजेंटमेंट होती है एज अ चाइल्ड, यू डिडंट डू दिस फॉर मी, यू डिडंट डू दैट फॉर मी, यू स्टॉप मी हियर बिकॉज ऑफ यू, आई एम लाइक दिस। तो क्योंकि अंदर में वो सब भी कहानियां चल रही होती है ना, हाँ। और पेरेंट्स की भी अपनी चल रही होती हैं। बिल्कुल। तूने मुझे कितना तंग किया था, तेरे को लेके मैं रात रात बैठी रहती थी, तेरे साथ ये था, तो इट इज लाइक दोनों साइड से, क्योंकि वो क्लीन स्लेट नहीं है। हम्म। फिर अगर सिबलिंग्स भी हो तो फिर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें, क्योंकि वो सिबलिंग को कुछ अपनी कहानी सुनाएगी, रहे आपके घर में रहे, सुनाएंगे उसको अपने दूसरे बच्चे को, फिर आपको और वो लगता है, फिर वो बच्चा भी आपको कहेगा तू मम्मी को ये कर दे, और वो दूर बैठ के मुझे मत बता, है हम्म। ना।
तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ऐसे आती है बिकॉज शेयर्ड हिस्ट्रीज हैं हम्म जो जो क्लियर नहीं हुए हैं, चीजें वही पैटर्न है ना। हम्म तो ये कॉन्वर्सेशंस जो है वो हमारे क्योंकि घरों में होती नहीं है ठीक से, तो वही हमारी देन लास्ट में फिर हमें वो खींचातानी करती हैं और निकलती हैं। एंड हम्म स्पेशली जब आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है अगला बंदा, तो फिर आप थोड़ा सा आप में पावर आ जाती है ना, यस। तो फिर आप निकालते हो और अगले बंदे को लगता है कि भी देखो मेरा हालत देखो, मैं बेचारी हम्म अब मैं इसकी डिपेंडेंट हो गई हूँ, तो अब देखो मेरी तो क्या ही हालत हो गई है। हम्म So it is a very sad state, let's say, या because we don't have open communication. हम्म तो मुझे लगता है कि सारी सारी चीजें सुलझ सकती हैं प्रोवाइडेड वी हैव Yeah, अ ओपन कम्युनिकेशन एंड right. rather than judging or rather than going into past or कुछ भी चीज, बट अगर अगर एक पेरेंट्स के साथ में ओपन कम्युनिकेशन होना शुरू हो तो उससे बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट धीरे धीरे हो सकती हैं। एंड यस, Yeah. एज यू राइटली सेड कि वो क्लीन स्लेट से तो हो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली एवरीबडी सिटिंग विद देयर ओन बैगेजेस। तो Yes. पेरेंट्स अपने बैगेजेस लेके बैठे Yes. हुए हैं, Yeah. चिल्ड्रन अपने बैगेजेस लेके Yeah. बैठे हैं, और फिर ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता है। And that is why Yeah. so many flares up come in at this time. And I'm seeing, like, in many of my friends, families, I've seen कि कहीं पर communication हो ही नहीं रहा है, कहीं पर एक लेवल पे हो रहा Yeah. है तो वो आधा अधूरा हो रहा है। तो वो मतलब Yeah. I can see that open communication is something which is still which I agree with you कि it will help in a long run, and definitely. So this the last question which I will take is, how can we use this phase of caregiving as a mirror to finally heal our wounds around love, attention, and being enough? तो मेरे लिए ना एक वर्ड है इंटेंशन। इफ वी हैव फेथ कि जो हमारे पेरेंट्स थे उनकी इंटेंशन भी कभी खराब नहीं थी, Hmm. जो भी उन्होंने किया विद इन देयर लिमिटेशंस, विद इन देयर ओन टर्मोइल्स, बट उनकी इंटेंशन कभी खराब नहीं थी। और हम भी आज जो कर रहे हैं हमारी इंटेंशन खराब नहीं है, Hmm. कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं बट इंटेंशन खराब नहीं है। एंड द पेरेंट शुड ऑल्सो ऑलवेज ट्रस्ट दैट कि मेरे बच्चों की इंटेंशन सही है। वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे चाहे आई एम नॉट हैप्पी विद वॉट दे आर डूइंग, बट उनकी इंटेंशन तो बुरी नहीं है। तो अगर दोनों तरफ से ये चीज हम बारी बारी रिमाइंड करते रहें कि गिवन वॉट एवर इज देयर इंटेंशन सही है, फिर क्या है ना, वो ट्रस्ट बिल्ड होगा हमारा पेरेंट में, पेरेंट का हम में। Hmm. और ये बारी बारी रिमाइंड करना पड़ता है Yeah. until it becomes when you absolutely know, फिर क्या सारी वुंड्स अपने आप हील हो जाती हैं Hmm. कि ऐसे ही आई हैड टू गो थ्रू इट एंड दे ऑल्सो हैव टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स, तो वो गिल्ट भी कम हो जाता है। They Hmm. also have to go through their own pains, their own whatever unresolved emotions, undigested life experiences, and I can do nothing about it. Yeah. And so we free them also from our expectations, free ourselves from our expectation, and then perhaps they will also free us from their expectations. Yeah. So beautiful. So beautiful. I think this is where what you said, that intention, सबसे पहले तो important intention है कि हमारा intention इस पूरे जर्नी में एज अ पेरेंट
जब पेरेंट्स का था और अब जब हम केयर गिवर का रोल अदा कर रहे हैं तो इंटेंशन हमारे सही है। और दूसरा, ओवर अ Yeah. पीरियड ऑफ टाइम अ ट्रस्ट बिल्ड्स अप, सो देन ऑब्वियसली Yeah. वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अपने आप थोड़ा सा ग्रिप कम होने लग जाता है। एंड बाकी तो जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि एवरीबडी हैज टू गो थ्रू देयर ओन पेन इन देयर ओन जर्नी, Yeah. so that is very Yeah. important. And that is where I think I would like to end today's session. though बहुत कुछ ऐसे पूछने के लिए मेरे पास है, आपके पास, मेरे मेरे पास है. So uh, so I would like to say all the people who are listening to this podcast today, if you at time if you feel that you are invisible, or so I would definitely like to tell you that your exhaustion is valid. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. And the way you show up even in small moments is is really important. It is very important that the calm, the patience, everything should be there. It's breaking an old pattern maybe, so the next generation is also taken care of, I guess, somewhere. So thank you so much for sorting out a lot of things which were there regarding caregiving. Thank you so much, Chitra ji, today. And until next time, may you care for others with compassion, and may you remember to care for yourself too. Take care. Thank you so much. Bye. Yes. Thank you. Thank you, Sukhbir. That was very nice. Thank you.